Hello everyone. So yesterday we did some basic about trigonometry and we studied about some trigonometric ratios. So on the basis of that we have our first exercise 8.1 and I'm going to solve some of the important questions. Rest of the questions you try to solve on your own. So I'm taking first question. In a triangle ABC, right angle at B, AB is given 24 and BC is given 7 centimeter. So we have to determine first part is sin A cos A and sin C cos C. Fine. So let us make a triangle ABC, right angle at B. Fine. So AB is given 24 and BC is given 7 centimeter. So we have to find out sin A and cos A. So sin A we know that it is perpendicular upon hypotenuse and cos A is base upon hypotenuse. But in this triangle we can see that we are having only perpendicular and base. So we need to find out hypotenuse first by using Pythagoras theorem. So when we apply Pythagoras, what we get after solving these, fine. So what we get? कि hypotenuse AC is 25 centimeter. ठीक है. So when we are having the hypotenuse, जब हमारे पास hypotenuse आ गया है तो we can find out the trigonometric ratios. तो sin A is perpendicular upon hypotenuse, that is CB upon AC. CB है 7 centimeter and AC है 25 centimeter. Then cos A, that is base upon hypotenuse, that will be AB upon AC. AB is 24 and AC is 25 centimeter. अब देखो इसमें यहाँ हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे, एंगल A. अब हमें निकालना है साइन C. साइन की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल C. अब जब हम इस एक्यूट एंगल को लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसके एडजेसेंट साइड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर. ठीक है. देन साइन C विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर विल बी AB एंड हाइपोटेन्यूज विल बी AC. हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, राइट. दैट विल बी 24 अपॉन 25. देन cos C विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब C है, बेस इज हेयर 7 centimeter. ठीक है. एंड देन हाइपोटेन्यूज इज ओवर हेयर इज 25 centimeter. ठीक है. So we have solved the first question, the very basic things which we have done. Let us take another question, question number 4. The question number 4 is we are given 15 cot A is equals to 8. We have to find out sin A and secant A. ठीक है. अब इसमें देखिए, फर्स्ट वी विल मेक द ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B. ठीक है. अब देखो 15 कॉट ए हमें गिवन है 8, तो कॉट ए क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15. ठीक है. अब कॉट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ 10A. 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट विल बी 8 अपॉन 15. तो वी कैन नॉट डायरेक्टली राइट के बेस हमारा 8 है, नहीं, ये दोनों क्या है हमारे यहाँ रेशोज़ हैं ये. ठीक है. दे आर रेशोज़. तो रेशोज़ का इक्वालिटी का साइन हटाने के लिए वी ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट. तो बेस विल बी 8K एंड परपेंडिकुलर विल बी 15K. ठीक है. तो इन ट्राइंगल ABC अगेन वही हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, बट हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है. वी विल डू द सेम थिंग इन विच वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1. वी विल फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज फर्स्ट. तो आफ्टर डूइंग सम कैलकुलेशन हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया है 17K. ठीक है. सी यू कैन सी हेयर हाइपोटेन्यूज विल बी प्लस माइनस 17K. वी आर टेकिंग ओनली positive 17K because side can never be negative. I have already written in the bracket so that you don't get confused. We will not take minus 17K. We will take only positive value. Fine. So when we are having all the sides of the triangle, we can find out the rest of the ratios. Sin A will be perpendicular upon hypotenuse. ठीक है. So perpendicular upon hypotenuse, that will be 15 upon 17K. K and K will be cancelled out. We are left with only 15 upon 17. Then we have secant of A. Secant of A, that will be hypotenuse upon base. ठीक है. तो 17K divided by 8K. K again will be cancelled out and we are left with only 17 upon 8. ठीक है.
So I hope it is clear. Then move on to next question. Now I am taking question number 8. Question number 8 is we are given 3 cot A is equal to 4. अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ को सिमिलैरिटी है ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है. वहाँ पर हमें गिवन था 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड हेयर वी आर गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4. तो हमें वही चीज़ें करनी है जो हमने यहाँ पिछले क्वेश्चन में की थी. बस इसमें हमें डिफरेंट क्या करना है कि वी हैव टू चेक वेदर दिस साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ठीक है. तो उसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी शुड हैव, जब हमारे पास एक ट्राइंगल है उसमें 2 साइड हैं हमारे पास, तो थर्ड हमें निकालनी होगी. दैट वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. तो वो हम निकालेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो टेन और कॉस और साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल पुट ओवर हेयर. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाती हैं देन वी कैन से कि येस दे आर इक्वल. ठीक है. सो लेट अस डू इट. तो अगेन वी विल डू द सेम थिंग. 3 cot A इज इक्वल टू 4. तो cot A विल बी 4/3. that will be base and perpendicular, that it will be 4/3. So base will be 4k and perpendicular will be 3k. So again in triangle ABC we will apply Pythagoras to find out hypotenuse. Hypotenuse after doing the calculation we have got 5k. Again मैंने यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा है कि we are not taking negative value because I have already told you कि AC will be 5k not minus 5k because side cannot be negative. ठीक है. Then we will find out 10A. 10A होगा 1/cot A. ठीक है. दैट विल बी 3/4. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट बिकॉज वी आर गिवन cot A इज इक्वल टू 4/3. तो 10A विल बी 3/4. देन cos A विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. बेस इज 4k एंड हाइपोटेन्यूज इज 5k. 5 वही डायरेक्टली मैंने लिखा है बिकॉज दे विल कैंसल आउट, तो डायरेक्टली 4/5. देन sin A विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट विल बी 4/, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइटनेस इट विल बी 3/5. ठीक है. देन मूव ऑन फर्दर. सो फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है. ठीक है. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 10A की हमारी जो वैल्यू थी दैट वी विल पुट ओवर हेयर 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. अब उसके बाद व्हेन वी विल ओपन द स्क्वायर तो इट विल बी 9/16 एंड व्हेन वी विल टेक द एलसीएम 16 विल कम ओवर हेयर. तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9 एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 16 प्लस 9/16. तो जो ये 16 एंड 16 विल बी कैंसल्ड आउट. ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा 16 माइनस 9 एंड डिनोमिनेटर में रहेगा 16 प्लस 9. तो 16 9 माइनस 9 जब सब्ट्रैक्ट होंगे 16 में से वी विल गेट 7 एंड 16 प्लस 9 इज़ 25. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है 7/25. ठीक है. नाउ वी विल सॉल्व राइट हैंड साइड एज वेल. लेट्स सी कि वो 7/25 आती है कि नहीं. तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस ए हमने निकाला 4/5, यहाँ वैल्यू पुट किया. देन साइन ए वी आर हैविंग 3/5, यहाँ वैल्यू पुट किया. तो व्हेन वी ओपन द स्क्वायर it will be 16/25 and that will be 9/25 and we will take the LCM because ये क्या है लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर आर सेम. तो इट विल बी 16 माइनस 9 डायरेक्टली न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड वी विल गेट 7/25. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था सॉल्व करने के बाद 7/25. राइट हैंड साइड भी 7/25. तो वी वर सपोज टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट. सो देयरफॉर वी कैन से कि येस दे आर इक्वल. ओके. Move on to next question. Now we are taking question number 10. We are given a triangle PQR. ठीक है. Right angle at Q. It is right angle at Q. PR plus QR is equal to 25. ठीक है. The side PR plus QR is equals to 25 and side PQ is given 5 centimeter. We have to determine sin P, cos P and tan P. sin P निकालना है, cos P निकालना है और tan P निकालना है. दैट मीन्स इस एक्यूट एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में हमें रेशोस निकालनी है. ठीक है. देखो अब हमारे पास गिवन है PR प्लस QR इज 25. तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हेयर कि हम QR को X एज्यूम कर लेंगे, इस साइड को
एंड पी आर को हम वाई एज्यूम कर लेंगे एंड देन व्हाट वी विल डू दैट इज x प्लस वाई विल बी 25. ठीक है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लिया दैट इज़ 25 माइनस x. ठीक है, वाई वी आर डूइंग दिस बिकॉज हमें यहाँ पाइथागोरस लगानी है और अगर हम डायरेक्टली यहाँ पाइथागोरस लगाते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये 2 वेरिएबल्स में हो जाएगी. ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स में अगर हमारे पास दूसरी कोई इक्वेशन तो हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको 1 वेरिएबल के ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है बाय टेकिंग y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, सो दैट हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो सके. तो देन आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 और y की वैल्यू हमने क्या ली थी 25 माइनस एक्स, तो वी विल पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर. फिर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे. ठीक है, दैट विल बी 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x. तो यहाँ से बिकॉज बोथ द साइंस आर सेम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये डायरेक्टली मैंने कर दिया यहाँ पे, अदरवाइज व्हाट वी डू ट्रांसपोजिशन, यहाँ से इसको हम इधर लेकर आते हैं देन साइन नेगेटिव होता है. ठीक है, दैट वी हैव डन सो मैनी टाइम्स, सो आई हैव रिटन डायरेक्टली. तो देन वी आर हैविंग 50x इज इक्वल टू 600 बिकॉज 625 अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं. ठीक है, देन इट विल बी 25 माइनस 625, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा और यहाँ भी नेगेटिव है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. वो डायरेक्टली लिखा है मैंने 50x विल बी 600, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 12 सेंटीमीटर बाय डिवाइडिंग 600 बाय 50. ठीक है, अब हमारे पास जब x की वैल्यू आ गई है तो डेफिनेटली हम y की तो निकाल ही सकते हैं. ठीक है, y विल बी 25 माइनस एक्स, दैट विल कम 25 माइनस 12, इट इज़ y इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. सो अब जब हमारे पास तीनों साइड्स हैं वही चीज़ें हमें वापस से करनी है. साइन कॉस और टेन पी निकालना है, तो साइन होगा हमारा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स अपॉन वाई. एक्स की वैल्यू 12 है और वाई है 13. ठीक है, देन कॉस पी निकाल लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज पी क्यू 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज पी आर दैट इज वाई, जो हमने अभी निकाली हैं 5 अपॉन 13. देन 10 पी विल बी क्यू आर अपॉन पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट विल बी 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर. So these were some of the important questions, and then we have our trigonometric इसका आगे जो भी डिस्कशन है दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. थैंक यू.